Assalamualaikum friends, hope you are all doing good. सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे. Today we are in lecture 4 of the Indian Penal Code and we are going to discuss the chapter 3rd of the Indian Penal Code which deals with the punishments. And the provisions which deal with these punishments are from section 53 to 75. So let us begin the first section, that is section 53. Section 53 deals with punishments and it provides 5 kinds of punishments. The first one is death penalty, second one is life imprisonment, third one is imprisonment and which is of two types, rigorous and simple, and fourth one is forfeiture of property, and fifth one is fine. Originally it provided 6 kinds of punishments, but now the third one is repealed and now the section 53 provides only 5 kinds of punishments. Now let us first discuss the death penalty, or we can say capital punishment. It is the most serious nature of punishment. Some countries have abolished it, but in India it is still avoided in some certain exceptional cases. That is in section 121, section 132. Almost there are 8 provisions of the Indian Penal Code where death sentence is avoided. Section 121, section 132, section 194, section 302, section 305, section 396 and section 307 and section 376. In all these offences, death penalty is still avoided in India. Now coming to imprisonment for life. Imprisonment for life, firstly, it was a transportation for life. The Code of Criminal Procedure Amendment Act of 1955 then substituted the words imprisonment for life for the words transportation for life. And imprisonment for life means the imprisonment for the remaining period of life, that is till death. Usually in India it is awarded for 14 years and 20 years under section 57. Now there are almost 51 sections in IPC which provide punishment with imprisonment for life. 8 sections provide death penalty and 51 section provides imprisonment for life. Now coming to the third type of punishment, that is imprisonment. Imprisonment means confinement or total deprivation of personal liberty. It is of two kinds, namely simple and rigorous. Simple imprisonment means the convicted person is not put to any kind of work or labor, while the rigorous imprisonment means the convicted person is put to hard labor such as digging earth, cutting wood, etc. Now coming to forfeiture of property, it means the taking away of property of the criminal by the state. At present, it relates to offences under section 126, 127 and 169 of the Indian Penal Code. Deals with the forfeiture, provides the punishment as forfeiture of property. Now coming to the fifth kind of punishment, that is fine. It means forfeiture of the offender's money. It may be awarded as a sole punishment or alternative, or it may be in addition to the imprisonment. Kindly go through these two cases, Lakshman Naskar versus State of West Bengal, Union of India versus C.D. Haran. Both of these two cases deal with the life imprisonment. Now coming to section 53A. 53A is a deals with the construction of reference to transportation. Basically what it means that wherever you find the transportation for life as punishment in the Indian Penal Code, construe it as a reference to imprisonment for life. Basically, after the introduction of this section in 1955, transportation as a sentence has been done away with as a punishment. इसको ख़त्म किया गया. Otherwise पहले ये दिया जाता था. At the time the Indian Penal Code was enacted, transportation meant transporting a criminal beyond the seas. ये एज अ पनिशमेंट दिया जाता था, क्रिमिनल को ट्रांसफ़र किया जाता था बियॉन्ड द सी, समंदर पार उसको भेजा जाता था एज अ पनिशमेंट. And during the British rule in India, such prisoners who were awarded transportation were generally sent to the Andaman Nicobar Islands.
नाउ कमिंग टू सेक्शन 54 कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस डेथ। ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को पावर्स है कि वो विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर कम्यूट कर सकती है सेंटेंस ऑफ डेथ, ठीक है, फॉर एनी अदर पनिशमेंट प्रोवाइडेड बाय दिस कोड। एंड नाउ कमिंग टू सेक्शन 55 दैट डील्स, इट आल्सो डील्स विद द कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। सेक्शन 54 वहाँ पे कम्यूट होता है सेंटेंस जहाँ पे उसको डेथ मिली हो, डेथ सेंटेंस मिली हो, वहाँ पे भी कम्यूट होता है, और ये पावर्स अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को होते हैं। सेक्शन 55 में भी जहाँ पे बंदे को इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिली हो वहाँ पे भी कम्यूट होता है, और ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को पावर्स है, लेकिन यहाँ पे मिलती है फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 14, यानी कि 14 ईयर्स तक तो फिर भी उसको सज़ा मिलनी ही मिलनी है। अगर उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिली है तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को वो उसको कम्यूट करके 14 साल तक उसको अवॉर्ड कर सकती हैं। Now coming to section 55A that deals with the definition of appropriate government कि appropriate government का क्या मतलब है। इसका मतलब है अगर ये ऑफेंस ऐसा है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट देयर। और जहाँ पे सेंटेंस ऐसा है जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को पावर्स है वहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। सेक्शन 56 हैव बीन ओमिटेड। Now coming to section 57, it provides the fraction of term of punishment। अगर हम कैलकुलेट करेंगे कि फ्रैक्शन ऑफ पुनिशमेंट क्या है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तो वो है 20 ईयर्स की, ठीक है। और ये लिमिटेड इन इट स्कोप है, और एप्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन हैज बीन यूज्ड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ द टर्म। कैलकुलेट करनी है फ्रैक्शन ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट क्या है, वो 20 ईयर्स है। Now coming to section 58, it has been omitted. Section 59 have also been omitted. Now coming to section 60, it provides sentence may be in certain cases of imprisonment wholly or partly rigorous or simple। जहाँ पे बंदे को ऑफेंडर को पनिशमेंट मिली है तो वो पनिशमेंट अगर ऐसे इस नेचर की है कि वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट भी है उसमें और उसमें सिंपल भी है, लेकिन प्रेस्क्राइब नहीं किया गया है कि कितना ऑफेंस रिगरस है और कितना ये है, तो वहाँ पे कोर्ट को पावर्स है वो उसको होली सिंपल दे सकते या होली रिगरस दे सकते या पार्टली सिंपल पार्टली रिगरस। ये कोर्ट के पावर्स है यहाँ पे सेक्शन 60 में। सेक्शन 61 omitted, सेक्शन 62 have also been omitted। Now coming to section 63 that provides for amount of fine के amount of fine कितना देना होगा बंदे को अगर ऑफेंडर को अगर उसको पुनिशमेंट मिली है, जहाँ पे वायर नो सम इज एक्सप्रेस्ड टू विच अ फाइन में एक्सटेंड द अमाउंट ऑफ फाइन टू विच ऑफेंडर इज लायबल इज अनलिमिटेड बट शैल नॉट बी एक्सेसिव। जहाँ पे कुछ ऑफेंसेस में ये पुनिशमेंट दी गई है ऐसी कि पुनिशेबल विथ फाइन, बट वहाँ पे नहीं दिया गया कितना फ़ाइन लेना है ऑफेंडर से, 500 600 1000 2000, तो वहाँ पे कोर्ट को पावर्स है कि वो उसको अनलिमिटेड फ़ाइन चार्ज कर सकते हैं, बट इट शैल नॉट बी एक्सेसिव। सेक्शन 64 डील्स विद सेंटेंस इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। अब अगर उसने फ़ाइन नहीं दिया तो उसको फ़ाइन कैसे, उसको क्या करना है, तो जहाँ पे एक उसने एक ऐसा ऑफेंस किया है जहाँ पे उसको उस ऑफेंस की सज़ा इम्प्रिजनमेंट है एज वेल एज फ़ाइन है, और उस बंदे को ऑफेंडर को बोला गया है कि फ़ाइन दे दो आप, सेंटेंस उसको फ़ाइन की हो गई है, या ऑफेंस ऐसा है जिसमें फ़ाइन भी है और इम्प्रिजनमेंट भी है, फ़ाइन और इम्प्रिजनमेंट है, तो और उसको फ़ाइन हुआ, कन्विक्शन हुई, सेंटेंस हुआ है कि फ़ाइन दे दो, लेकिन वो फ़ाइन नहीं दे रहा है, तो सेक्शन 64 के तहत उसको सफ़र करनी है और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ सर्टन टर्म। ये सेक्शन 64 में प्रोवाइड किया गया है। तो सेक्शन 64 provides for the award of punishment in default of payment of fine in all cases in which fine can be imposed। जिन जिन केस में उसको फाइन इम्पोज हुआ है और उसने फाइन नहीं दिया है तो कोर्ट उसको अवार्ड ऑफ पुनिशमेंट देगी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, ठीक है। नाउ कमिंग टू सेक्शन 65, ये बात तो अब हमें समझ आ गई कि अगर उसने फ़ाइन नहीं दिया, डिफ़ॉल्ट किया, नॉन पेमेंट किया तो उसको इम्प्रिजनमेंट होगी।
अब सेक्शन 65 में बोलता है कि कितनी इम्प्रिजनमेंट होगी, 4 साल की होगी, 10 साल की होगी, 1 महीने की होगी, कितनी की होगी, ये लिमिट प्रोवाइड करता है फॉर ना इन केस ही मेड अ डिफ़ॉल्ट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। तो उसको कितनी सज़ा मिलेगी, दैट इज़ प्रोवाइडेड इन सेक्शन 65। सेक्शन 65 बोलता है कि जहाँ पे ऑफेंडर ने एक ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी पुनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट है एज वेल एज फाइन है, लेकिन उसने फाइन पे नहीं किया, तो उसको कोर्ट सज़ा देगी कितनी, 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट वेयर ही मेड डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। तो इन दोज केसेस उसको वहाँ पे और इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, लेकिन वो 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए। अगर उसको 2 साल की इम्प्रिजनमेंट हुई है एंड फाइन आल्सो, अगर उसने फाइन नहीं किया तो 2 साल का 1/4 कितना है, तो उसको और उतनी सज़ा काटनी है। दैट इज़ प्रोवाइडेड इन सेक्शन 65। नाउ कमिंग टू सेक्शन 66 की डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। सेक्शन 64 में हमने देखा कि उसको सफ़र करनी है इम्प्रिजनमेंट जहाँ पे उसने नॉन पेमेंट ऑफ फाइन किया। सेक्शन 65 में देखा हमने कि लिमिट कितनी की, जितनी इम्प्रिजनमेंट है उसका 1/4 से उसको इम्प्रिजनमेंट और होगी। सेक्शन 60 में अब उसको सिंपल मिलनी है या रिगरस, तो सेक्शन 66 प्रोवाइड फॉर डिस्क्रिप्शन इम्प्रिजनमेंट, किस तरह की उसको इम्प्रिजनमेंट मिलेगी। तो सेक्शन 66 बोलता है कि अगर उसको पुनिशमेंट मिली है सिंपल की, तो फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन के लिए भी उसको सिंपल की ही सज़ा काटनी है। अगर उसको इम्प्रिजनमेंट मिली है रिगरस की, तो फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन के लिए भी उसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट ही मिलेगी। That is provided in section 66. Now coming to section 67, imprisonment for non-payment of fine when offence punishable with fine only. लेकिन अब अगर उसने एक ऐसा ऑफेंस किया जिसकी सज़ा इम्प्रिजनमेंट नहीं है, बल्कि उसकी सज़ा खाली फाइन है, और उसने फाइन की नॉन पेमेंट की, वो उसने डिफ़ॉल्ट किया, उस टाइम पे क्या इसमें एक स्केल प्रोवाइड किया गया है। तो ये बोलता है सेक्शन 67 कि अगर उसने डिफ़ॉल्ट किया ऑफ पेमेंट ऑफ द फाइन, जहाँ पे पुनिशमेंट ऑफेंस की फ़ाइन ही थी खाली, और उसने उसी की डिफ़ॉल्ट की, तो उसको सिंपल ही इम्प्रिजनमेंट मिलेगी। इसमें स्केल भी प्रोवाइड किया गया है। अगर उसने 50 रुपए की उसका फ़ाइन हुआ था, उसने डिफ़ॉल्ट किया 50 रुपए पे करने में, तो उसको 2 महीने की सज़ा मिलेगी, ठीक है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट। अगर उसको फ़ाइन हुआ था 100 रुपया, लेकिन उसने 100 रुपया नहीं दिया, डिफ़ॉल्ट किया, तो उसको 4 महीने की सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिलेगी। एंड अगर उसने मतलब इससे ज़्यादा 100 से ज़्यादा उसको फ़ाइन हुआ था, उसने नहीं पे किया, डिफ़ॉल्ट किया, तो उसको 6 महीने से ज़्यादा 6 महीने की सज़ा हो जाएगी। नाउ कमिंग टू सेक्शन 68, इम्प्रिजनमेंट टू टर्मिनेट ऑन पेमेंट ऑफ फाइन। जब भी वो फाइन पे करेगा तो उसकी इम्प्रिजनमेंट टर्मिनेट हो जाएगी। नाउ कमिंग टू सेक्शन 69, अगर उसने प्रोपोर्शनल पेमेंट की, थोड़ी सी भी पेमेंट की, तो तब भी उसको टर्मिनेट हो जाएगी इम्प्रिजनमेंट। नाउ कमिंग टू सेक्शन 70, फाइन लीवेबल विद इन 6 ईयर्स। ये बोलता है कि जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है फॉर रियलाइजेशन ऑफ फाइन, शैल ऑर्डिनरी भी, ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल तक होता है। और ये भी बोलता है सेक्शन 70 में, ये भी प्रोवाइड किया गया है कि अगर बंदा ऑफेंडर की मौत हो गई, वो मर गया, लेकिन उसने पेमेंट ऑफ फाइन नहीं किया, तो क्या वो पेमेंट ऑफ फाइन की लायबिलिटी एक्सटिंग्विश हो जाएगी फाइन पेमेंट करने की? तो नहीं। इस सेक्शन में प्रोवाइड किया गया कि इट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी विच वुड आफ्टर हिज डेथ बी लीगली लायबल फॉर हिज डेट। वो उसके प्रॉपर्टी से वसूल की जाएगी, ठीक है। दैट इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 70। Now coming to section 71, that provides for limit of punishment offense made up of several offenses. अगर ये सेक्शन 71 एक ऐसा मतलब इसमें 5 पैराज है। आई विल ट्राई टू रीड इट। इसमें पहले ये बोलता है कि इफ़ ऑफेंस इज मेड अप ऑफ पार्ट्स ईच ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूट से ऑफेंस। ऑफेंस ने उसने पार्ट में किया, ठीक है, एक बंदे ने ऑफेंस पार्ट में किया है,
और हर एक पार्ट ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। द ऑफेंडर शैल नॉट बी पुनिश्ड फॉर मोर देन वन ऑफेंस। पहले उसने किया वो भी ऑफेंस, दूसरा बार उसने जब किया वो भी ऑफेंस, तीसरी बार जब उसने किया वो भी ऑफेंस है। तो क्या इन तीनों को मिल, अगर एक पार्ट की भी सज़ा है, दूसरे पार्ट की भी सज़ा, तीसरे पार्ट की भी सज़ा, क्या तीनों को मिला के उसको 3 साल की सज़ा मिलनी है? नहीं, उसको खाली एक ही पार्ट की सज़ा मिलेगी। ठीक है, दैट इज़ प्रोवाइडिंग सेक्शन 71। आई विल रीड आई विल रीड एन इलस्ट्रेशन बिफोर यू। इसमें एक बंदा क्या है, वो एक बंदे को स्टिक से मार रहा है, AZ को मार रहा है स्टिक से, और उसको 50 बार वो मानो कि थप्पड़ मार रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि वो उसको वॉलंटरली तो एक मतलब स्टिक से मार रहा है, थप्पड़ मार रहा है या स्टिक से मार रहा है, वो वॉलंटरली उसको मारा, वॉलंटरली उसको वो हर्ट कर रहा है। ठीक है, जब वो पहली बार मारा है तो वो भी हर्ट है, दूसरी बार 50 बार मारेगा तो 50 बार वो हर्ट बन जाता है। क्या उसको 50 बार सज़ा मिलेगी 50 ईयर्स की? नहीं, उसको खाली एक ही सज़ा मिलेगी, एक ही ब्लो की। ठीक है, नाउ कमिंग टू सेक्शन 72, दैट क्या ये सेक्शन क्या प्रोवाइड करता है? ये सेक्शन बोलता है कि इन दिस सेक्शन प्रोविजन इज मेड ऑफ पनिशमेंट इन दोज केसेस वेयर एक्चुअल फैक्ट्स आर प्रूव्ड। ये सेक्शन बोलता है कि ये यहाँ पे पनिशमेंट दी गई है, प्रेस्क्राइब की गई है सेक्शन 72 में, वो उन केसेस में जहाँ पे एक्चुअल फैक्ट्स तो प्रूव हो गए और कमीशन भी हो गया वन ऑफ सेवरल, यहाँ जो ऑफेंडर ने एक से ज़्यादा ऑफेंस किए, लेकिन फिर भी डाउटफुल है वहाँ पे एज टू विच ऑफ द ऑफेंसेस द अक्यूज्ड इज गिल्टी, कि ऑफेंडर जो है अक्यूज्ड है तो वो किस ऑफेंस में गिल्टी है। ये डाउटफुल वाला सेक्शन है, सेक्शन 72। नाउ कमिंग टू सेक्शन 73। सेक्शन 73 प्रोवाइड्स फॉर सॉल्टरी कन्फाइनमेंट। सॉल्टरी कन्फाइनमेंट क्या होता है? सॉल्टरी कन्फाइनमेंट मीन्स कीपिंग द प्रिजनर आइसोलेटेड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इंटरकोर्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि उसको लोगों के साथ कोई मेल मिलाप नहीं होता, उसको अलग एक सेल में बंद किया जाता है। ये इसीलिए किया जाता है दैट फीलिंग ऑफ लोनलीनेस एक्सर्ट होलसम इन्फ्लुएंस एंड रिफॉर्म द क्रिमिनल, ताकि इसमें चेंज आए, इस पर कुछ असर हो जाए। ठीक है, बट इट कैन नॉट बी इन्फ्लिक्टेड फॉर द होल टाइम ऑफ इम्प्रिजनमेंट। अगर उसको 6 महीने की सज़ा हुई है तो 6 के 6 महीने में उसको सॉल्टरी कन्फाइनमेंट नहीं होगी। ठीक है, ये एक्सेप्शनल केसेस में दी जाती है ये सॉल्टरी कन्फाइनमेंट। और इसका ये कितना दिया जा सकता है, इसमें सिक्योर प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 73 में, जहाँ पे वेन एवर एनी पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस फॉर विच अंडर दिस कोड द कोर्ट हैज़ पावर टू सेंटेंस हिम टू रिगरस इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, कोर्ट जब एक बंदे को इम्प्रिजनमेंट हुई है, कोर्ट के पास पावर्स है कि वो उसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट दी। कोर्ट में बाय सेंटेंस ऑर्डर दे द ऑफेंडर, और कोर्ट ही ये भी बोल सकता है कि इस ऑफेंडर को सॉल्टरी कन्फाइनमेंट दे दीजिए फॉर एनी पोर्शन ऑफ द इम्प्रिजनमेंट टू विच ही इज सेंटेंसड। किसी पोर्शन के लिए अगर 3 महीने की सज़ा हुई है तो 1 महीने इसको सॉल्टरी कन्फाइनमेंट में रखो, बट टू विच ही नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स इन द होल। लेकिन उसको 3 महीने से ज़्यादा सॉल्टरी करना, अगर उसको 6 साल की सज़ा हुई है, 6 साल में उसको 3 महीने सॉल्टरी कन्फाइनमेंट, इससे ज़्यादा उसको सॉल्टरी कन्फाइनमेंट नहीं रखा जा सकता है। इसमें एक स्केल प्रोवाइड किया गया, इसमें बोलते हैं कि अगर बंदे ने ऑफेंस किया है जिसकी सज़ा 6 महीने है, ठीक है, उसको इम्प्रिजनमेंट मिली है 6 महीनों के लिए, तो उसको 1 महीना सॉल्टरी कन्फाइनमेंट मिल सकता है। ठीक है, ये सेक्शन 73 में प्रोवाइड किया गया है। अगर किसी ऑफेंडर को सज़ा मिली है, इम्प्रिजनमेंट मिली है 1 साल की, तो उसको 2 महीने सॉल्टरी कन्फाइनमेंट में रखा जा सकता है। अगर ऑफेंडर को सज़ा मिली है 1 साल से ज़्यादा, 2 साल की, 3 साल की, तो उसको 3 महीने की सॉल्टरी कन्फाइनमेंट मिल सकती है। दैट इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 73। नाउ कमिंग टू सेक्शन 74, ये बोल रहे हैं कि लिमिट क्या है, सॉल्टरी कन्फाइनमेंट का लिमिट क्या है। ये बोलता है कि इन एग्जीक्यूटिंग दिस सेक्शन डील्स विद द लिमिट ऑफ सॉल्टरी कन्फाइनमेंट इन एग्जीक्यूटिंग अ सेंटेंस। इट प्रोवाइड द सॉल्टरी कन्फाइनमेंट मस्ट इम्पोज्ड एट इंटरवल्स। फॉर एग्जांपल, ये इंटरवल में अगर हम उसको 3 महीने की सॉल्टरी कन्फाइनमेंट हमें देनी है, 1 महीने की सॉल्टरी कन्फाइनमेंट देनी है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि 3 महीने तक हम उसको सॉल्टरी कन्फाइनमेंट में रखें या 1 महीने उसको, उससे उसको मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, मेंटल अरेंजमेंट हो सकती है। बेसिकली एज अ होल एट अ टाइम उसको 14 दिन रखा जा सकता है सॉल्टरी कर, उसके बाद फिर से नॉर्मल सेल में रखा जा सकता है, तो फिर उसके बाद फिर से 14 डेज एट अ टाइम उसको दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते।
नाउ कमिंग टू सेक्शन 75 एनहेंस्ड पनिशमेंट। कुछ ऑफेंसेस में एनहेंस्ड पनिशमेंट मिल जहाँ पे बंदा हैबिचुअल ऑफेंडर हो। क्या? अगर उसने पहले ऑफेंस किया है रिलेटिंग टू कॉइन्स एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स प्रोवाइडिंग सेक्शन 12 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, वहाँ पे उसने कोई ऑफेंस किया है पहले भी, या उसने क्या किया, उसने या ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी की, दैट इज चैप्टर उसने ऑफेंस किया चैप्टर 17 में। ठीक है, आई विल रीड आउट द सेक्शन लैंग्वेज। हु एवर हैविंग बीन convicted by a court in India of an offence punishable under chapter 12 or chapter 17 of the code with imprisonment of either discretion for a term of 3 years or upwards, जहाँ पे बंदे को पहले कन्विक्शन हुई है किस किस चैप्टर में, चैप्टर 12 एंड चैप्टर 17। चैप्टर 12 डील्स विद ऑफेंसेस रिलेटिंग कॉइन एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स एंड चैप्टर 17 डील्स ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अगर इन दो चैप्टर्स में उसने कोई ऑफेंस किया और उसको कन्विक्शन मिली है पहले, और इन चैप्टर्स में पुनिशमेंट 3 साल की थी या 3 साल से ज़्यादा, shall be guilty of any offence punishable under either of these chapters with like imprisonment for the like term shall be subject to for any subject to for a life or और उसने फिर से यही ऑफेंस किया जिसमें 3 साल की सज़ा थी या 3 साल से ज़्यादा सज़ा थी, तो उसको क्या, उसको एनहेंस्ड पनिशमेंट मिलेगी, या तो उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिलेगी और इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्ट फॉर अ टाइम विच में एक्सटेंड 10 या 10 साल की सज़ा मिल जाएगी। ठीक है, होप यू हैव understood it properly. Hope you will like my channel and you will like my lectures. If you like my lecture for any reason, like my channel, subscribe it and share it with others. And it was all for today. uh, have a nice day. Allah Hafiz. Take care.